Hello guys, welcome to my channel Macron Receptor, and today we are going to discuss about the different types of boiler accessories we are having. Here to start with, boiler में दो parts बहुत main होती हैं. First one is called boiler mounting and second one is called boiler accessories. Today we are going to discuss about the different types of boiler accessories that we are having. Here to start with, they are not the integral part of boiler. They are not integral part of boiler. It means ऐसा नहीं है कि अगर किसी बॉयलर के ऊपर हम एक्सेसरीज नहीं लगाएंगे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. इट मीन्स एनी बॉयलर कैन रन विदाउट द एक्सेसरीज, बट इफ वी आर यूजिंग द एक्सेसरीज, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सेसरीज? एक्सेसरीज जो होती हैं they basically improve the working efficiency of the boiler. Clear? We can say they improve or they increase the efficiency of the boiler. Efficiency of the boiler. Clear? So that is the main use of using the boiler accessories. So they're not an integral part of boiler, but they can improve the efficiency of the boiler, clear, when it is working. To start with, different type of boiler accessories we are having. First one is called superheater. Okay. Second accessory is known as economizer. Third one is called feed pump. And the fourth one is known as air preheater. Clear? As you guys can see in the diagram also, we have four different types of accessories in a boiler. Clear? So wherever a line is drawn like this, arrows is drawn like this, dots. Clear? It is representing the flow of flue gases. जो भी आप गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्यूल को बंद करने के बाद, ये उसको शो कर रहा है डायग्राम. Clear? So from the boiler to superheater to the economizer to the preheater and in the end to the chimney, जो फ्लो कर रहा है ये बेसिकली क्या है? It is the flow of the flue gases. Clear? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सुपरहीटर. तो सुपरहीटर का यूज बेसिकली क्या होता है कि जब हम बॉयलर में वाटर को हीट करते हैं तो हमको वहां जो स्टीम मिलती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की स्टीम नहीं होती है. मोस्टली इट इज अ सैचुरेटेड स्टीम. तो हम करते हैं क्या है कि जो बॉयलर से हमको स्टीम मिलती है उस स्टीम को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बॉयलर की स्टीम को हम यहाँ से निकालते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं किस में? सुपर हीटर में. ओके. तो सुपर हीटर हम करते हैं क्या? बेसिकली उसको हम हीट करते हैं. वी ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इट. Clear? So we try to increase the temperature of what? Temperature of saturated steam. Of saturated steam when pressure remains constant. तो हम सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं स्टीम के, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. इट मींस बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राई टू कन्वर्ट व्हाट? वी आर ट्राई टू कन्वर्ट द saturated steam into what? Into superheated steam. This is what we are trying to do with the help of the superheater. तो स्टीम की जो क्वालिटी है वो हम इंप्रूव कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर. वो हम कैसे कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं फ्लू गैसेज को यूज कर रहे हैं. जो फ्लो कर रही है यहाँ से, ये सारी क्या है? दे आर ऑल फ्लू गैसेज. तो फ्लू गैसेज जब वहां से बॉयलर से बाहर निकलने वाली है चिमनी से, तो उनके जो पाथ है फ्रॉम बॉयलर टू सुपरहीटर, उसके पाथ में हम उसकी हीट को यूटिलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, सो दैट जब वो यहाँ से बाहर निकले चिमनी से, उस पॉइंट तक हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो गैसेस से अब्सॉर्ब कर ली हो. तो सुपरहीटर भी आपका क्या कर रहा है? वेस्ट जो फ्लू गैसेस है उनकी हीट को यूज कर रहा है. क्लियर? सेकंड वन इज कॉल्ड इकोनोमाइजर. एज द नेम बेसिकली सेइंग, इट इज इकोनोमाइजर. तो ये करता क्या है? इट बेसिकली इंप्रूव द इकोनॉमी ऑफ द बॉयलर. It improved the economy of the boiler. Improved economy of the boiler. Now, how it is improving the economy of the boiler? Economizer is again placed in the path of superheater or the flue gases, we can say. So over here, I'm going to have what? I'm going to have a feed pump over here. This is my feed pump, which is feeding water into the boiler. So from the pump, the water is not directly given to the boiler. It is passed through the economizer, through the tube, so that when it comes out from the economizer में यहाँ से क्या एंटर कर रही है? फ्लू गैसेस. ट्यूब्स के अंदर क्या है? पानी है. तो आपका जो पानी है वो गर्म हो जाएगा. सो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट बिफोर वी सेंड वाटर इनटू द बॉयलर, उस पानी का जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली क्या हो? पहले से ही हल्का सा ज्यादा हो. तो हम यहाँ से जो सेंड कर रहे हैं वो क्या है? इट इज नॉट वाटर, इट इज हॉट वाटर दैट इज ऑलरेडी एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर. वो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं?
प्री हीट सॉरी इकोनोमाइजर की हेल्प से। इट मींस इकोनोमाइजर क्या कर रहा है, ये वाटर को प्री हीट कर रहा है। क्लियर? सो ये क्या करता है, वाटर को प्री हीट करता है ताकि वो बॉयलर में जाके स्टीम में कन्वर्ट जल्दी हो जाए। क्लियर? अगर हम ऐसा करेंगे तो जो आपको फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं बॉयलर में कन्वर्ट करने के लिए वाटर को स्टीम में, वो क्या लगेगा आपके पास, वो कम कंज्यूम होगा। तो ये ऑलमोस्ट 50 से लेके सॉरी 15 से लेके 20% तक आपके पास क्या होती है, कोल जो आप बर्न करते हो उसमें क्या होती है, रिडक्शन होती है, फ्यूल में रिडक्शन होगी अगर आप इकोनोमाइजर को यूज करते हो किसी भी बॉयलर में। ऑटोमेटिकली अगर आप कम फ्यूल बर्न कर रहे हो, आपकी इकोनॉमी कर जाएगी, ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर? थर्ड वन इज कॉल्ड फीड पंप। तो ये वही पंप है जिसके थ्रू आप वाटर भेज रहे हो इकोनोमाइजर में। तो फीड पंप क्या होता है, क्योंकि आप बॉयलर में कंटिन्यूसली पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो, so we need water to be sent into the boiler continuously. For that we are using a feed pump. Clear? So it is nothing but doing what, it is basically feed the water, it feed the water to the boiler. बट इशू क्या है इसमें, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं बॉयलर की, बॉयलर में जो प्रेशर होता है स्टीम का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपने वहाँ पे पानी को सेंड करना है प्रेशर पंप से, तो जो प्रेशर होगा फीड पंप का वो क्या होगा, वो एटलीस्ट 20% ज़्यादा होगा, 20% मोर देन व्हाट, देन द प्रेशर ऑफ द बॉयलर, वी कैन से वर्किंग प्रेशर ऑफ द बॉयलर से ज़्यादा होगा वो एटलीस्ट 20%, टू मेक श्योर कि जो फीड पंप है वो पानी सप्लाई कर सके इसमें बॉयलर के अंदर। ओके? और लास्ट में क्या है, एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर क्या करता है, ये इकोनोमाइजर के बाद लगा हुआ है प्री हीटर, फ्लू गैसेस के पाथ में लगा हुआ है। तो हम जस्ट करते कुछ नहीं है, जो भी आप बॉयलर की फर्नेस में एयर देने वाले हो, क्लियर, सो उसमें जो आप एयर दोगे फर्नेस में, वो क्या होगी, वो आप उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। सो इट इज बेसिकली यूज्ड व्हाट, इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग द एयर। जो आप एयर दे रहे हो फर्नेस में ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द फ्यूल, उसमें हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम बाहर से एयर लेंगे, लेट अस सपोज मैंने यहाँ से एयर ली, क्लियर, एयर इन, फिर उसको हम पास करेंगे कहाँ से, एक ट्यूब से, जो कि कहाँ से पास कर रही है, प्री हीटर के थ्रू। तो ट्यूब में एयर है, बाहर क्या है, फ्लू गैसेज हैं, तो अपनी जो हीट है फ्लू गैसेज किसको देंगी, वो ट्यूब को देंगी। उसके अंदर एयर है, एयर आपकी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो हम यहाँ से जो पास करेंगे इस पाथ से, वो हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ से हम पास कर रहे हैं एयर को। और ये जो एयर है वो हम डायरेक्टली कहाँ देंगे इसके बाद, इनटू द बॉयलर फर्नेस। क्लियर? तो जो हम यहाँ से दे रहे हैं वो क्या है, वो हॉट एयर है। तो उसको हम हॉट कर कैसे रहे हैं, वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ एयर प्री हीटर और सिंपली प्री हीटर। सो फाइनली चिमनी से क्या निकलेगा, आपके पास जो फ्लू गैसेज है वहां से बाहर निकल जाएंगी। जितनी भी एक्सेसरीज हैं, एटलीस्ट सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड प्री हीटर, ये तीनों ही क्या ट्राई कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज द वेस्ट गैसेज, वेस्ट हीट ऑफ द फ्लू गैसेज, जो कि हम यूज नहीं करने वाले थे बट हम उनको यूज कर रहे हैं। क्लियर? इकोनोमाइजर की एडवांटेज एक और है कि अगर आप उसमें वाटर को ऑलरेडी हीट करके सप्लाई कर रहे हो बॉयलर के अंदर, तो जब वो अंदर जाएगा तो स्टीम में कन्वर्ट जल्दी होगा। इट मींस जो आपके पास स्टीम जनरेशन की रेट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इफ वी आर यूजिंग अ economizer in a boiler. So steam generation capacity will also increase if we are using a economizer. Clear? So these are the things about the boiler accessories. ये important नहीं है कि ये हर एक boiler में हो, but यहाँ भी जो होगा they will try to improve the efficiency of the boiler only, and they are not integral part of the boiler. Clear? तो जहाँ से हम जो सप्लाई कर रहे हैं स्टीम से, वो ये क्या है, स्टीम है, जो कि हम किस में दे रहे हैं, सुपर हीटर में। सुपर हीटर में वो स्टीम किस में कन्वर्ट हो रही है, इनटू सुपर हीटेड स्टीम, और उसके बाद वो फाइनली बाहर निकलेगी यहाँ से, एंड इट कैन बी गिवन टू द प्राइम मूवर एनीवेयर, जहाँ भी हम उसको यूज करना चाहते हैं। इट कैन बी स्टीम टर्बाइन और इट कैन बी स्टीम इंजन, एनीवेयर जहाँ भी आपने उसको यूज करना है, यू कैन ट्रांसफर द स्टीम। तो स्टीम जो आपको यहाँ से मिलेगी वो क्या होगी, इट इज गोइंग टू बी अ सैचुरेटेड स्टीम। So it is going to be a superheated steam. Clear? Please replace this thing by superheated steam. Superheated steam.
क्लियर? तो जो यहां से आ रही है बॉयलर से वो क्या रहेगी? वो रहेगी सैचुरेटेड स्टीम, और जो यहां से बाहर निकलेगी सुपर हीटर से वो क्या रहेगी? इट इज गोइंग टू बी अ सुपर हीटेड स्टीम. Okay, so this is how the boiler accessories work. So that is all for today about the boiler accessories. In the next lecture, we're going to discuss about the different boiler mountings, and we will discuss about the Benson boiler also. Clear? So that's all for today. Please, if you guys like the video, please comment on the video, and please share the video with your friends also. And please subscribe my channel, that is Receptor. And please press the bell icon also to get the notification of the upcoming videos. Thank you very much.